ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے جماعت اسلامی کی جانب سے منائے گئے یوم سیاہ کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں بلدیاتی ترمیم بل کے خلاف آج یوم سیاہ منایا گیا۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام نماز جمعہ کے بعد مساجد کے باہر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کسی بھی صورت سندھ حکومت کو پاکستان کی شہر کراچی پر قابض نہیں ہونے دیں گے۔ جعلی بل کے خلاف 12 دسمبر کو شہر میں تاریخی مارچ کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کو کہتا ہوں کہ اس بل پر سیاست نہ کریں، بل کے معاملے پر سیاسی جماعتیں اپنی سیاست چمکانا بند کریں۔ سندھ اسمبلی میں بلدیاتی ایکٹ کے تحت منظور ہونے والے بل کے خلاف یوم سیاہ مناتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں صدر کے علاقے میں خضرا مسجد کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس جعلی بل کے خلاف 12 دسمبر کو شہر میں تاریخی مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ کسی صورت سندھ حکومت کو پاکستان کی شہرک پر قابض نہیں ہونے دیں گے۔ پورے شہر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پورے شہر میں احتجاج ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہزاروں کارنر مٹیں گے، یہ جاری رہیں گی۔ اور 12 تاریخ کو 12 دسمبر کو نمائش سے لے کر اور KMC بلڈنگ تک ایک تاریخی مارچ ہوگا، کراچی بچاؤ مارچ ہوگا۔ پورے شہر کے لوگوں سے رابطہ کریں گے اور تمام طبقات سے ملیں گے، ہر پولیٹیکل ورکر کے پاس جائیں گے۔ انشاءاللہ 12 دسمبر کو بہت بڑا مارچ ہوگا کراچی کے حق کے لیے، اس جعلی بل کے خلاف، غیر آئینی غلامی والے کالے قانون کے خلاف بہت بڑا احتجاج ہوگا انشاءاللہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ بل کے معاملے پر عوامی ہمدردی بٹورنے کے لیے سیاسی جماعتیں اپنی سیاست چمکانا بند کریں۔ میں پوچھتا ہوں جب بل منظور ہو رہا تھا اس وقت وہ کہاں تھے؟ مگر مچ کے آنسو مت بہاؤ، تم اپوزیشن نہیں ہو، تم پیپلز پارٹی ہو یا MKM یا PTI۔ بلدیاتی انتخاب نہ کرانے پر ان کا اتحاد تھا، مردم شماری ٹھیک نہ کرنے پر ان کا اتحاد ہے، کوٹا سسٹم مزید بڑھانے پر ان کا اتفاق ہے۔ تو پھر یہ کس کراچی کی بات کرتے ہیں؟ پھر یہ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں؟ جماعت اسلامی نے اس شہر کی خدمت کی ہے، نعمت اللہ خان نے اس کو ترقی دی ہے۔ یہاں بلڈنگیں گرانے کی بات ہو رہی ہے، لاکھوں بلڈنگیں گراؤ گے، جب بنتی ہے تو کہاں ہوتے ہو؟ احتجاجی مظاہرے میں کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جنہوں نے ہاتھوں میں پیپلز پارٹی سندھ حکومت کے بل کے خلاف بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز کراچی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اب سڑکوں سے رجوع کر لیا۔ سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ بلدیاتی بل کے خلاف MKM پاکستان کا سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں احتجاجی مظاہرہ۔ گورنر نوید جمیل کہتے ہیں کہ زیادتی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ اپنی آواز ہم ہر جگہ بلند کریں گے۔ سندھ میں جعلی ڈومیسائل پر ملازمتیں دے کر لاکھوں نوجوانوں کا حق مارا گیا۔ گورنر نوید نے مزید کہا کہ بلدیاتی ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں۔ متعصب صوبائی حکومت 400 ارب ٹیکسوں کی مد میں جمع کرتی ہے۔ حیدرآباد میں کچرے کے ڈھیر لگے ہیں۔ حکومت کا احتساب کرے اور پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو انصاف دلوائیں۔ اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب یہ اس ظالمانہ نظام اور اس ظالمانہ حکومت کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ نے جو یہ علم جدوجہد بلند کیا ہے، یہ نہیں رکے گا۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں کہ بلدیاتی قانون اور پیپلز پارٹی کی متعصب جاگیردارانہ آمریت کا راستہ روکنا ہوگا۔ اس ضمن میں پاکستان تحریک انصاف کا تعاون بے حد درکار ہے۔ MKM پاکستان کے ڈیپٹی کنوینر اور سابق میئر وسیم اختر کی کراچی میں انصاف ہاؤس میں خرم شیر زمان سے ملاقات کی اور 11 دسمبر کو MKM پاکستان کے زیر اہتمام ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کا دعوت نامہ پیش کیا۔ اس موقع پر وسیم اختر کا کہنا تھا کہ کالے بلدیاتی قانون اور پیپلز پارٹی کی متعصب جاگیردارانہ آمریت کا راستہ روکنا ہوگا۔ اس ضمن میں پاکستان تحریک انصاف کا تعاون بھی درکار ہے۔ PTI رہنما خرم شیر زمان نے وسیم اختر کو یقین دلایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد آل پارٹیز کانفرنس میں ضرور شرکت کرے گا اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آنے والے کالے بلدیاتی قانون کا راستہ روکا جائے گا۔ اس موقع پر رابطہ کمیٹی کے رکن ارشاد ظفیر اور مرکزی شعبے کے رکن صادق افتخار بھی موجود تھے۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سندھ کی تمام سیاسی جماعتوں نے آپس میں رابطے تیز کر دیے. پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال کا جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. دونوں رہنماؤں کے درمیان نئے بلدیاتی ترامیم بل کی منظوری سے متعلق امور پر بات چیت بھی ہوئی. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ کے عوام کو بے اختیار بنانے کے لیے متنازع بل کو روکنا ہوگا. اور تمام تر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے بھی عدالت سے رجوع کر دیا. تحریک انصاف کے اراکین سندھ اسمبلی نئے بلدیاتی ترمیمی بل کو چیلنج کر دیا. پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی. چیف سیکرٹری، اسپیکر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور سیکرٹری قانون، چیف الیکشن کمشنر کو فریق بنایا گیا. سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ترمیمی بل کو کالعدم قرار دیا جائے. لوکل گورنمنٹ کے تمام اختیارات سندھ حکومت اپنے پاس لینا چاہتی ہے. درخواست گزار کا موقف. خبر شامل کریں گے سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کے حوالے سے. اپوزیشن جماعتوں کے سخت احتجاج پر سندھ حکومت نے یو ٹرن لے لیا. نئے بلدیاتی نظام کو مزید بااختیار بنانے کا اعلان. سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ نئے بلدیاتی ترامیم میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی سفارشات شامل کی گئیں. یو سی اور ٹاؤنز بنانے کی جو بات ہے اس میں بہتری لائی گئی، جبکہ میئر کراچی ہی واٹر بورڈ کے چیئرمین ہوں گے. ہر ریجن کی سطح پر منتخب نمائندے چیئرمین ہوں گے. جو ٹاؤن سسٹم کی ڈیمانڈ تھی وہ بھی پوری کر دی گئی. جبکہ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی نے کہا کہ اپوزیشن لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے. پبلک ہیلتھ سمیت بہت سارے محکمے بلدیاتی اداروں کو دینے جا رہے ہیں. بلڈنگ کنٹرول یا کے ڈی اے کے قانون میں ترمیم کری تو ضرور کریں گے. آپ کہتے تھے کہ نسلہ نہ گرے، گجر نالہ متاثرین کو امداد ملے. حکومت سندھ نے قانون بنایا. ہم پہلے دن سے بات کرنے کو تیار ہیں. ہم بضد نہیں ہیں. اپوزیشن لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے. سندھ میں نئے بلدیاتی نظام کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج. صوبائی حکومت کا بلدیاتی اداروں کو مزید بااختیار بنانے کا اعلان. صوبائی وزراء سعید غنی اور سید ناصر حسین شاہ کی سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس. کہا کہ مقامی حکومت کے قانون میں ترمیم کے لیے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے تو تجاویز دی، وہ شامل کی ہیں. بلدیاتی نظام میں یونین کونسل کے چیئرمین تک کو بااختیار بنایا جا رہا ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بھی مقامی حکومتوں کے ماتحت ہوں گے. یہاں پہ ان سب کی سفارشات جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ جماعت اسلامی کی، یہ ایم کیو ایم کی طرف سے، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے. بہت ساری جو ان کی سفارشات تھیں، جو ان کی سجیشنز تھیں، وہ ہم نے اس میں شامل کی. میئر جو ہیں وہ واٹر بورڈ کے چیئرمین ہوں گے. ان کا عمل دخل جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو ویسے بھی ریجنل وائز کر دیا گیا ہے. میئر ہوں گے. اگر وہاں پہ کارپوریشن نہیں ہے اور کسی ڈسٹرکٹ میں کام ہو رہا ہے تو وہاں کے جو چیئرمین ہیں یا جس ایریا میں کام ہو رہا ہے، مے بی وہاں کی میونسپل کمیٹی میں کام ہو رہا ہو، تو وہاں کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اس میں رول دیا گیا ہے. وزیر اطلاعات سعید غنی کا کہنا تھا کہ جتنی نالائق اور نااہل وفاقی حکومت ہے، اس سے زیادہ نالائق اور نااہل سندھ کی اپوزیشن ہے. اس وقت جو شور مچایا ہوا ہے ہماری اپوزیشن نے، وہ ہر حال میں شور مچائے. ہم ان کی ساری باتیں مان لیں گے نا تب بھی یہ شور مچائیں. انہوں نے اعتراض ہر حال میں اٹھانا ہے. لیکن ہم آپ کے ذریعے اس صوبے کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہماری جو نیت ہے، جو ہمارے پلانز ہیں، جو منصوبے وہ آپ کے سامنے ہم روزانہ شیئر کر رہے ہیں. یہ تین چیزوں پہ رونا رو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ تینوں کرنے کو تیار ہے بھائی جو تم کہہ رہے ہو. صوبائی وزراء نے سراپا احتجاج اپوزیشن کو نئے بلدیاتی نظام میں مزید بہتری لانے کے لیے مذاکرات کی بھی دعوت دی. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب بات کریں گے کراچی کے نسلہ ٹاور کی، جس کے ڈیمولیشن کا عمل جاری و ساری ہے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے حکم پر نسلہ ٹاور گرانے کا کام 3 شفٹوں میں جاری. نسلہ ٹاور کی بالائی منزل کو ہیوی مشینری کے ذریعے سے توڑنے کا کام جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ نسلہ ٹاور کے اطراف دفعہ 144 کے تحت 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر مکمل طور پر پابندی بھی عائد ہے، جبکہ اس پابندی کا اطلاق نسلہ ٹاور مکمل مسمار ہونے تک برقرار رہے گا. اور اب کچھ عدالتی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی اہم سماعت کے حوالے سے.
सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके नॉर्थ नज़्माबाद ब्लॉक एफ में केडी एराजी पर वर्कशॉप चलाने का केस। जो जवाब जमा करवाया, कब्जे का तो जिक्र ही नहीं किया। अदालत केडीए वकील पर सख्त बरहम। अदालत ने केडीए हुकाम से आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इस केस की समाअत 13 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। और अब कुछ तस्करा करेंगे बल्दियाती मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल का। आपको बताएं कि सूबे भर में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल छठे रोज में दाखिल हो गई, जबकि कराची समेत सिंध के कई शहरों में कचरे के ढेर। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बाइस ताफुन और गंदगी की वजह से शहरी सख्त परेशान। शहरियों का कहना है कि 3 से 4 रोज से बल्दियाती अमला कचरा उठाने नहीं आ रहा, जिससे गली मोहल्लों में ताफुन फैल रहा है और बीमारियां फैलने का भी खदशा है। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बाइस ताफुन और गंदगी की वजह से शहरी परेशान होने लगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैवरेज का पानी शाहराहों पर जमा हो गया है, जबकि कराची में सॉलिड वेस्ट के तहत सफाई सुथराई का काम जारी है। शहरियों का कहना है कि 2-3 रोज से बल्दियाती अमला कचरा उठाने नहीं आ रहा, जिससे गली महलों में ताफुन फैल रहा है और बीमारियां फैलने का खदशा है। स्ट्राइक की वजह से जो कचरा उठाते हैं वो हजरात ने कचरा उठाना छोड़ दिया और एहतजाज करे, तो उनके मुतालबात माने जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बैकअप में सारा मस्जिद भी सामने है और यहाँ पर कचरे के माहौल आप देख सकते हैं। इसकी वजह से गंदगी और बच्चे बीमार, और आमतौर पर आजकल जो बीमारी फैली हुई है उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। तो इन हजरात के मुतालबात माने जाए और यहाँ से कचरे की सफाई की जाए। 3 दिन 4 दिन से इन लोग की स्ट्राइक है। क्या वजह है? ये हुकूमत का काम है। कचरा उठाने नहीं आ रहे और ये मस्जिद के हवाले से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये मोहल्ले वाले, यहाँ के लोग कि इतनी परेशानी में है कि हम नहीं समझ पाते कि हम इनको किस तरह एप्लीकेशनें देते हैं, हर चीज़ कहते हैं। बहुत परेशानी है, बीमारियां फैल रही हैं। हाँ, 3 दिन से कचरा उठ नहीं रहा और ये 3 दिन से कचरा यहाँ पे दुनिया का ढेर है। इस कचरे की वजह से और स्ट्राइक की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। बस लिहाजा मेहरबानी करके इस कचरे की गंदगी को साफ कीजिए। बल्दियाती मुलाजमीन कहते हैं कि कटौती से हर माह 35% तनख्वाहों से महरूम हो रहे हैं। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के बावजूद खजाने से तनख्वाह देने में रुकावट डाली जा रही है। खबर शामिल करेंगे कराची के जिला बस्ती से, जो कि कुत्तों से मुकम्मल तौर पर भर चुका है। टोलियों की सूरत में घूमते आवारा कुत्ते शहरियों के लिए अब खौफ की अलामत बन गए। बुजुर्ग खवातीन और बच्चों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया, जबकि जिला इंतजामिया की सख्त गजीद की मुहिम भी महज दावों तक ही महदूद रही। शहर कराची में टोलियों की शक्ल में घूमते आवारा कुत्ते खौफ की अलामत बन गए। शहर में आवारा कुत्तों की बहुतात शहरियों को मजीद परेशानियों में मुब्तला करने लगी। बढ़ती आवारा कुत्तों की तादाद पर शहरियों ने खौफ का इजहार करते हुए कहा कि हम रात के औकात में गलियां बदल कर घर जाते हैं। सिंध हुकूमत इलाके में कुत्तों की तादाद को कम करने के लिए इकदाम उठाए। इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट इसका एक्शन ले। जो पहले कुत्ता मार मुहिम चलाया करते थे, पहले चला जो करती थी, वो अब रुक गई है। काफ़ी जगहों पे कितने कुत्ते के केसेस इतने हो गए हैं कि कुछ हॉस्पिटल में तो दवाई इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। अब जैसे ये अब्बासी हॉस्पिटल है, इसमें भी 2 कुत्ते ऐसे हैं पीछे सर्द खाने की तरफ। बंदा अगर कोई न्यू बंदा जैसे अपना राउंड पे असल में जो या डॉक्टर भी हो गए या यहाँ के रिहायशी हो गए, वॉक करने के लिए भी निकलें अगर अंदर, तो वहाँ भी कुत्ते पीछे लग जाते हैं। कुत्तों की तो भरमार है। जब रात बेरात हमारा तो काम रात में जब हम घर की तरफ लौटते हैं तो लातादाद कुत्तों का सामना करना पड़ता है। कभी आगे पीछे गाड़ियों पे लपकते हैं, लेकिन कोई मुहिम का आगाज़ ही नहीं हो रहा। बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं इस बारे में कि छोटे बच्चों को काट लेते हैं रात में या सुबह 7 बजे बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है ना। और आवाम की तरह मुझे भी मुश्किलात का सामना है और बेतहाशा कुत्ते और गली से आपका गुजरना मुश्किल हो जाता है। कुछ कुत्ते तो मानूस हो चुके हैं, लेकिन जो मानूस नहीं है वो काटने को दौड़ते हैं। आप बच्चों के साथ हों, आप फैमिली के साथ हों,
बाइक्स पे बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो मैं हुकाम आला से यही दरख्वास्त करूँगा कि अब इस पे थोड़ी तवज्जो दी जाए और इनको जो है काबू में रखा जाए। आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफे के सबब सिंध भर में सकगजीदगी के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। कराची में सड़कों और कचरा कुंडियों में लगे कचरे के ढेर भी साफ नहीं होते, जिसके बाइस गंदगी के अंबार में मौजूद खुराक से कुत्तों की अफजाइश तेज हो गई है। कैमरामैन शहरी के साथ सैयद नमान गुल, मेट्रो वन न्यूज, कराची। शहर कायद में जारी पानी का बहरान KBR सोसाइटी के मकीनों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगा। शहरी महंगे दामों पर टैंकर माफिया से पानी खरीदने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि महंगे दामों पर टैंकर से पानी तो मिल जाता है, लेकिन घरों की लाइनों में पानी नहीं आता। मुल्क को 70% से ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर में पीने के पानी का मसला हल ना हो सका। कराची के इलाके KBR सोसाइटी के रिहायशी पिछले 10 सालों से पीने के पानी से महरूम हैं। इलाके में महंगे दामों पर टैंकर के जरिए तो पानी मिल जाता है, लेकिन घर की लाइनों में पानी नहीं आता। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम पर KBR सोसाइटी के रिहायशियों ने कहा कि महंगाई वैसी हमारी कमर तोड़ रही है, जबकि पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है। हमारे नलों में पानी कब आएगा? नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, काफी अरसे हो गए। अभी आपने मोटर की हालत तो देख ली, जंग लग गया उसको, अब हम चलाते ही नहीं है क्योंकि यहाँ पानी आता ही नहीं है। लाइनें बिछी हुई हैं, सब कुछ है, लेकिन पानी नहीं आता। ठीक है ना, टाइम से नहीं आया पानी? ये 10 साल हो गए। टैंकर डलवाते हैं ये लोग, पानी जो है ना चोरी का, यहाँ का लाइनों का पानी दूसरी जगह चोरी कर लिया इन लोगों ने, वो बेचते हैं पानी। माफिया है यहाँ पर पूरी जो इस पानी को बेचती है। तकरीबन ये 10-11 साल हो गए, इधर पानी बिल्कुल एक बूंद भी नहीं आता, होता ही नहीं है यहाँ पानी। टैंकर डलवाते हैं, टैंकर वाले इतने महंगे देते हैं कि अब हम लोगों से नहीं बर्दाश्त होता। अब वो कुएं का भाई पानी होता है इस जगह पर, वो कुआं भी सूख चुका है कि वो कुआं भी जो है नहीं है कि पानी दे। इतने लोगों ने 300 फीट खुदवा दिए, उसमें पानी नहीं आ रहा। लोग यहाँ के बड़े परेशान हैं, बड़ी परेशानी की ज़िंदगी गुजर रही है। ये इमरान खान से अपील है कि KBR को देखें, खुदा के लिए इस पर कुछ रहम करें, क्योंकि पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया है। पानी पहले आज से 10 साल पहले पानी आता था, यही इलाका था जहाँ पानी था। आज पानी से इस इलाके के लोग जो है महरूम हैं, क्योंकि टैंकर माफिया की वजह। आप जिस गली में जाए आपको टैंकर नजर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। 2-2, 3-3 हज़ार में टैंकर पहुँचाए जा रहे हैं। पानी के लिए आवाम हालत ये लगी पड़ी है कि ज़मीन के अंदर भी पानी नहीं है। लोग बेचारे परेशान हैं। गरीब तबका है यहाँ पे, मजदूर तबका ज़्यादा है इस इलाके में। यहाँ 10-11 साल से तकरीबन पानी यहाँ नहीं है और लोग यहाँ के बहुत परेशान हैं। इमरान साहब से भी दरख्वास्त है, वज़ीर आला से भी है, हुकूमत जो है कुछ इस पर नज़रसानी करे। पानी जो हमारे पास है ही नहीं, और टैंकर जो है ना वो यहाँ आते हैं, उनसे पैसे से ख़रीदना पड़ता है टैंकर। भाई इलाके में पानी नहीं है, ये 20 रुपए का 1 गैलन बिक रहा है। अब पहले हम लोग लेके आते थे, क्या नाम है, टैंकर माफिया पानी देता था हमें 800 रुपए का। अब उन्होंने हाफ गैलन कर दिया है, वो भी क्या नाम है 1300 रुपए का, और उसमें भी हमें बड़ी परेशानी दुश्वारी होती है। KBR सोसाइटी में पानी की लाइनें होने के बावजूद भी शहरी साफ पानी की सहूलत से महरूम है। मुल्क में बढ़ती महंगाई के बाइस शहर कायद के अक्सर शहरी अपनी जरूरियात के लिए महंगे दामों पर पानी खरीदने के बजाय जेर जमीन बोरिंग के पानी पर इन्हिसार कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए नुकसानदाह है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ सैयद नमान गुल, मेट्रो वन न्यूज, कराची। इंतजामिया की गफलत के बायस लियाकताबाद 10 नंबर की मरकजी शाहरा पर वाक़े सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के बाहर 4 माह गुजरने के बाद भी सीवरेज का पानी साफ न हो सका। गंदे पानी के सबब शाहरा भी खस्ता हाल हो गई, जबकि कचरा भी जमा हो गया। बल्दियाती नुमाइंदों की अदम तवज्जही के सबब कराची के अस्पतालों के बाहर भी गंदा पानी जमा हो गया। शहर कायद के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर पर कायम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के बाहर की शाहरा भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली का शिकार हो गई। अस्पताल के बाहर 4 माह से मौजूद सीवरेज का पानी मरीजों को मजीद बीमार करने लगा। इस मौके पर शहरियों ने कहा कि मरकजी शाहरा पर अस्पताल के साथ 4 माह से गंदा पानी मौजूद है। यहाँ इतनी गंदगी है कि कोरोना भी हम पर क्या असर करेगा। जगह जगह गटर बह रहे हैं, रोड टूटे में, हम लोग इतना टैक्स देते हैं, इसका हमें कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर है ना कि हम लोग भी टैक्स खत्म ही कर दें। वो तो देख रहे हैं ना आप, इसकी मिसाल सीधी ये है कि कोरोना पाकिस्तान में इफेक्ट इसलिए नहीं हुआ कि हम इतनी गंदगी खाते हैं, जिससे कोरोना हमारे ऊपर कोई असर नहीं कर सका। वो
यहाँ से बहुत मुश्किलात आ रही है। एक तो गाड़ियों की रश और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और एक पूरा खड्डा खड्डा होता है, पूरा पानी होता है। यहाँ बहुत मुश्किल आना जाना, जो हम पैदल बंदे आते जाते हैं तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल होती है और ज़्यादातर गाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल होती है। सर ये काफ़ी महीनों से यही सूरत हाल है, गटर का पानी बहता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों ने कई दफ़ा एहतियाज भी किया इस पे, लेकिन कोई नहीं आता यहाँ। जी सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट मेन रोड पे हॉस्पिटल है। लोग कितने परेशान होते हैं यहाँ पे, सुबह जो है पैदल चलने का रास्ता नहीं होता, पानी में से जाना पड़ता निकल के। मेट्रो वन न्यूज भी कुछ माह कबल इस अस्पताल के बाहर गंदे पानी की निशानदही कर चुका है, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से इस पर कोई तवज्जो न दी गई। जहां मुतालिका अफसरान की गफलत के सबब शारा भी खस्ताहाल हो चुकी है और कचरे के ढेर भी लग चुके हैं। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो वन न्यूज, कराची। बल्दियाती इदारों की मुजरिमाना गफलत, लापरवाही और अदम दिलचस्पी ने शहर कायद को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। बल्दिया वस्ती की शाहराहों, गली मोहल्लों में लगे कचरे के ढेर से शहरियों का गुजरना भी अब मुश्किल हो गया। कूड़ा करकट और गलाजत से वबाई अमराज फूटने का खदशा भी पैदा हो गया। शहर कायद की सड़कों पर दिन ब दिन बढ़ते कूड़ा करकट, कचरे का ढेर और उससे उठती बदबू और ताफुन शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान बनी हुई है। इदारों की नाकिस कारकर्दगी के नतीजे में जिला वस्ती में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जिनसे उठने वाले ताफुन ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके न्यू कराची, सबा सिनेमा चौरंगी, सनत एरिया, गोदरा कॉलोनी, नॉर्थ कराची, ख्वाजा अजमेर नगरी, अंडा मोड़, नॉर्थ नाजमाबाद, शिपॉनर कॉलेज, मूसा कॉलोनी, करीमाबाद, लियाकताबाद सिंधी होटल, नाजमाबाद, गुलबहार और पापोश नगर की सड़कें, गलियां और मोहल्ले न सिर्फ सफाई से महरूम है, बल्कि जगह जगह कूड़े और गलाजत के ढेर से इलाका मकीनों को शदीद ताफुन भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बल्दियाती इदारों की चशम पोशी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कचरे से पैदल चलने वाले अफराद, गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को सख्त मसाइल का सामना है। बाज मकामात पर कचरे के लगे ढेर से सड़कें तक बंद हो गई। जी बहुत से एरियो में कचरे के ढेर पड़े हुए और गटर का पानी भरा हुआ है और सफाई की कोई वो नहीं है। आप देख सकते हैं सामने कचरा वचरा सब पड़ा हुआ है, ग्राउंड हो, पार्क हो, इन सब जगहों पे कचरा और गटर का पानी। तमाम इलाकों के अंदर, गलियों के अंदर गटर का पानी उबल रहा है, गटर के ढक्कन गायब हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा कचरा है, सामने की तरफ देखो कचरा है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, झाड़ू मारने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। और इतना बुरा हाल हो गया डिस्ट्रिक्ट सेंटर का कि हम जिस सेंट्रल में रहते थे, अब दिल ही नहीं करता इस सेंटर में रहने के लिए। गटर का पानी और हर कोई पानी, मीठा पानी तो आया ही नहीं 40 साल से। यहाँ आता है मुश्किल से, हफ्ते में एक दिन आ गया तो ठीक है, वरना नहीं आता यहाँ मीठा पानी। पूरी गलियाँ कचरों से भरी हुई हैं, पीछे वाली एक गली भी नहीं। मोहम्मदी से बाहर का जो एरिया है, इसके अंदर जो है ना वाकई में कचरे का फेंकने के हमें बहुत मसाइल हैं, क्योंकि कोई कचरा कुंडी यहाँ करीब है नहीं। सही है, और अभी थोड़ा सा और काम है, जो गंदी गलियों में जो है ना बिल्कुल कचरा वगैरह काफ़ी भरा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज की लाइनें टूट फूट का शिकार होने से गटर उबल पड़े हैं, जिससे मकीनों, बिलखुसूस नमाजियों और स्कूल जाने वाले तलबा और तालबात को सख्त परेशानी का सामना है। जिला बस्ती के मकीनों का कहना है कि बल्दियाती इदारे ख्वाब गफलत से नहीं जागे तो शहर में न सिर्फ वबाई अमराज फूटने का खदशा है, बल्कि सफाई की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी बल्दियाती इदारों पर आयद होगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ।
हमरा वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर आसिफ जान सिद्दीकी ने कहा कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान के मौके पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर DMC रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि नेशनल स्टेडियम के अतराफ सफाई सुथराई, रोशनी और सीवरेज के हवाले से भरपूर इकदाम किए जाएं, जबकि गाड़ियों की पार्किंग के हवाले से हकीम सईद ग्राउंड, चाइना ग्राउंड पर झाड़ियों की सफाई फौरी तौर पर करवाई जाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी, DMC ऑफिशियल्स के अलावा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ओहदेदारान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती तहा सलीम कहते हैं कि जिला बस्ती के मसरूफ कारोबारी इलाकों में कायम तजावुजात, ठेलों और पथारों को फिल फौर हटाया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी में किसी भी किस्म का खलल वाक़ न हो। मसरूफ तिजारती और कारोबारी इलाकों में पार्किंग के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने के हवाले से अपने दफ्तर में इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती तहा सलीम ने कहा कि लियाकताबाद सुपर मार्केट और समनाबाद के इलाकों में दुकानदारों और ख़रीदारी के लिए आने वाले लोगों के लिए मुतबादिल पार्किंग एरिया मुख्तस किया जाए, जहां आवाम अपनी गाड़ियां बिला खौफ व ख़तर पार्क कर सके, जबकि मज़कूरा इंतजामात की निगरानी ज़िला इंतज़ामिया वस्ती और बल्दिया वस्ती के मुताल्लिका शोबों की जिम्मेदारी होगी। जिला बस्ती के मसरूफ कारोबारी इलाकों में कायम तजावुजात, ठेलों और पथारों को फिल फौर हटाया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी में किसी भी किस्म का खलल वाक़ न हो। उनका मज़ीद कहना था कि बार बार कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले ठेले और पथारे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। इजलास में फैसला किया गया कि लियाकताबाद सुपर मार्केट में कैंप लगाया जाए, जहां इंतजामिया के नुमाइंदे मौजूद हों और तजावुजात, चार्ज पार्किंग और पथारों को पनपने से पहले ही खत्म कर दे। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर गुलबर्ग दादन खान लाशारी, असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद मोहतरमा सना तारिक सैयद, DSP ट्रैफिक गुलबर्ग अफजाल नूर, DSP ट्रैफिक नॉर्थ नदीम फारूकी, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, लैंड डिपार्टमेंट, डायरेक्टर इंक्रोचमेंट बल्दिया बस्ती, डायरेक्टर सैनिटेशन, डायरेक्टर बागात बल्दिया बस्ती नदीम हनीफ और दीगर मुताल्लिका अफसरान ने शिरकत की। बल्दिया शर्की में 7.5 करोड़ रुपए मालियत के 15 तरक्याती कामों की शफाफ टेंडरिंग मुकम्मल हो गई। शफाफ टेंडरिंग प्रोसेस पर ठेकेदारों ने एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख और म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान को खिराज तहसीन पेश किया। म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान कहते हैं कि तरक्याती कामों के टेंडरिंग प्रोसेस के साथ तरक्याती कामों में भी शफाफियत बढ़ती जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख की हिदायत पर म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान की ज़ेर निगरानी टेंडरिंग के अमल को शफाफ बनाने के लिए 7.5 करोड़ रुपए के महकमा B&R, M&D और महकमा पार्क्स के 15 तरक्याती कामों के टेंडर्स खोले गए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख, म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल मल्ला, सलमान मेमन, इम्तियाज भुट्टो, डायरेक्टर पार्क्स आगा समीर, जफर इकबाल, चीफ अकाउंट अफसर नवेद अहमद कुलाची और दीगर ने ठेकेदारों की मौजूदगी में टेंडर खोले जाने के अमल की निगरानी की और टेंडरिंग के अमल की निगरानी और शफाफियत के लिए मीडिया नुमाइंदगान ने भी टेंडर प्रोसेस के अमल का मुआयना किया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की फ़हीम खान ने कहा कि बल्दिया शर्की को हर लिहाज से शफाफियत का मरकज बनाने के लिए कोशा है। टेंडरिंग का अमल सबके सामने है, जिसमें वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है कि हर ठेकेदार इस बात पर मुतमईन है कि तमाम प्रोसेस शफाफियत पर मबनी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह DMC ईस्ट में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के तरक्याती कामों का टेंडरिंग का इजरा हुआ और मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी के साथ और मुकम्मल शफाफियत के साथ ये प्रोसेस जो है अभी जारी व सारी है और अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये ईस्ट की में पहली दफ़ा हुआ है, वरना इससे पहले जो है इन मामलात में बहुत ज़्यादा एहतजाज और कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से रिजर्वेशंस आती थी। इसलिए हमारी टीम ने रात एक मुकम्मल मीटिंग की जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उस मीटिंग को चेयर किया। हमने चाहा कि इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको मुकम्मल तौर पर ओपन रखा जाए ताकि अवामी तरक्याती कामों में किसी किस्म की मदाखलत न हो। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबर और ठेकेदारों के नुमाइंदों का कहना था कि बल्दिया शर्की में शफाफ टेंडरिंग के हवाले से मिसाल कायम कर दी गई है। तमाम प्रोसेस मुकम्मल तौर पर शफाफियत का आकाश है, जिस पर हम मुतमईन और मसरूर हैं। आज हम बहुत खुश हैं कि शफाफ तरीके से टेंडर हो रहे हैं,
جب سے رحمتullah شیخ صاحب MC صاحب آئے ہیں انہوں نے ٹینڈروں کو بالکل صاف شفاف کر دیا ہے. ہمارا مطالبہ بھی یہی تھا شروع دن سے کہ ٹینڈر صاف شفاف ہوں. جب ٹینڈر صاف شفاف ہوں گے تو لوگ بھی خوش ہوں گے, کانٹریکٹر حضرات بھی خوش ہوں گے. اس موقع پر ٹھیکیداروں نے بلدیہ شرکی انتظامیہ سے گزارش کی کہ مہنگائی کی وجہ سے ہر شے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, لہٰذا ان کے ریٹس کو بڑھانے کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں. ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر بلدیہ شرکی نے ٹھیکیداروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی ساجدہ قاضی اور میونسپل کمشنر ارشاد آرائی کی ہدایت پر ڈائریکٹر محکمہ سینیٹیشن سلیم رضا نے کورنگی اور لانڈی کا دورہ کیا اور مختلف علاقوں میں سڑکوں کی صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ بھی لیا. کورنگی اور لانڈی کے دورے کے موقع پر ڈائریکٹر محکمہ سینیٹیشن بلدیہ کورنگی سلیم رضا نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی ساجدہ قاضی اور میونسپل کمشنر ارشاد آرائی کی خصوصی ہدایت پر مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. 2 دن پہلے جو میٹرو ٹی وی سے رات کو ایک نیوز ہمیں ملی کہ جس میں کچرے کا کوئی ڈھیر لگا ہوا تھا, تو آج ہم نے اسی لیے کل اسے ریموو کیا. بیسیکلی ہمارے کورنگی اور لانڈی میں سیوریج کا بہت زیادہ ایشو ہے, جس کی وجہ سے ہمیں گاربیج لفٹنگ میں جو ہے وہ پرابلمس آتی ہیں. لہٰذا ہم واٹر بورڈ سے بھی گزارش کریں گے اپنے سیوریج کے معاملے کو وہ درست کریں, تاکہ جو بھی مسئلہ اگر یہاں پر کچرے کے حوالے سے جو بھی پریشانی آتی ہے وہ سارا الزام DMC کے اوپر آ جاتا ہے, لیکن اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ سیوریج سسٹم ہوتا ہے. سیوریج پر جو روڈوں پہ گندا پانی یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, کیا ان کا ہوتا ہے اور جو ہے وہ سارا الزام ہمارے سر پہ آ جاتا ہے. لیکن بہرحال ہم پھر بھی انشاءاللہ اپنی کوشش پوری کرتے رہیں گے, اسی طرح سے کچرا اٹھتا رہے گا اور اللہ نے چاہا تو ہمارا DMC کورنگی. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1.